we are glad that our presence is from Uttarakhand to Anantapur district. And as we discussed about building an inclusive entrepreneur ecosystem, going vernacular, so I think I should speak more in vernacular because anyways we are talking about vernacular. So I would like to invite my both supporters, and I learned a lot from them, by the way, Rahul and Gautam also, to join for this discussion. And whenever you think you like to intervene, just तो मेरा प्रेजेंटेशन इंग्लिश में स्लाइड्स है, बट हिंदी में और इंग्लिश में मिक्स बात करना चाहूंगी। आईसीड ने क्यों सोचा कि ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करने की जरूरत है? तो काफी सारे इंक्यूबेटर्स हैं, काफी सारा काम हो रहा है, बट समहाउ ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स जो है वो पूरी मेन स्ट्रीम से छूट रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड स्कीम्स हैं, आप देखेंगे कि राइट फ्रॉम स्टार्टअप इंडिया से पीएमकेवीवाई तक बहुत सारी स्कीम्स हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस भी है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे ज्यादा से ज्यादा actually नहीं, it's not working sir। वहीं दिखाना है बट वो चल नहीं रहा है अभी। यहाँ पे हैंग हो गया, यहाँ पे भी हैंग हो गया। एनीवेज हम लोग तब तक बात कर लेते हैं। मीनवाइल स्लाइड्स, हाँ वो हैंग हो गई है, पता नहीं सिस्टम हैंग हो गया है, काम नहीं कर रहा है। तो काफी सारी स्कीम्स है एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड, बहुत सारी ऐसी स्फूर्ति से लेके एस्पायर तक काफी सारी स्कीम थी जो फोकस कर रही थी कि एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे और बढ़ाया जा सकता है। बट जो बेसिक चीज है वो ये है कि एक्सेसिबिलिटी क्या ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स की वहां तक है, और उसमें बहुत ज्यादा गैप हम लोगों को भी नजर आया। मे बी बिकॉज ऑफ रूरल मैनेजमेंट बैकग्राउंड और वर्किंग विथ लॉट ऑफ एनजीओज, वो डेवलपमेंट सेक्टर का शायद एक वो था कि लगा कि बहुत सारे एनजीओज भी प्रमोट कर रहे हैं ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स को, बट अभी उनकी और क्षमता वर्धन की या कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। इसीलिए हम लोगों ने काफी meanwhile if you want you can add something about why we started, you both, Rahul I think start from your why we started? All the focus that a lot of social enterprise incubators were working on, it was essentially to work with social entrepreneurs and, to be honest, essentially work with people like us. Somebody like me who can speak English and who can, now I will not say who can handle the PowerPoint presentation, but somebody who's pretty much like me. And that is, I think, the comfort zone for a lot of social enterprise incubators. And we wanted to go the extra mile, and we thought, okay, here is a kind of a big constituency, and not many people are actually working with them. And the idea was to then see if we can be slightly different and we can go out and work with them. And the second, of course, there is a need. I mean, our experience of now doing how many prototypes? 6 prototypes. So this is kind of design thinking in practice. So we thought that before we even get into what we want to do, can we go out in the field and see what is out there and learn from actually doing it. So we did about 6 trainings across, and also pooled in our collective experience of doing these kind of trainings with other organizations, not directly through iSeed. And we realized that there's a huge need of 2 things. So one is, of course, going vernacular. And why? Because otherwise we were mostly like, you know, old days the Americans were like perceived to be going to a country and then saying, do you speak English? Yeah. So our trainings were also like, you know, becoming
like that. You know, the thinking is in English. Even the translation that we do was more Google translation, not really how it should be. So I remember in one of the trainings, we were trying to do this business model canvas. And now you have to explain what is a unique selling proposition. Now, every MBA student will understand what a USP is. You don't even have to say it. Everybody understands what is USP. But how do you kind of, translate it to that level? And if you do Google translation, something very, very weird would come up. And then until a participant who kind of knew it, and he said, जो आप बोल रहे हैं इसका मतलब है कि हम जो काम कर रहे हैं इसकी खासियत क्या है? हाँ, ये ठीक है. इसी तरह से हमारे अपने जो जार्गन है, मार्केटिंग के, सेल्स के, अकाउंटिंग के, उन सबको भी रियलाइज की बहुत जरूरत है कि उसको सिंप्लीफाई किया जाए और उसको ट्रांसलेट किया जाए, नॉट इन द वे गूगल अंडरस्टैंड्स इट और नॉट इन द वे सम महापंडित ऑफ हिंदी विल अंडरस्टैंड इट, बट more on the ground. And so this was kind of, the reason why we started. We thought that working with grassroots entrepreneurs is where IRMA can have an edge and iSeed can have an edge. That can be our khasiyat, so to say. So coming again to presentation, so there are a lot of schemes of government of India ने काफी सारी entrepreneurship को बढ़ावा देने के लिए काफी सारी schemes थी. नेशनल SC/ST हब भी है जो सिर्फ और सिर्फ SC/ST लोगों के लिए है, बट बहुत सारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों को भी नहीं पता है कि उनके लिए ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है जो उनको सपोर्ट करती है. तो हमारा फोकस जो था कि iSeed ने क्यों शुरू किया, तो iSeed सोशल एंटरप्राइज इकोसिस्टम लार्जली जो है वो बड़े एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात करता है और माइक्रो ग्रासरूट लेवल के एंटरप्रेन्योर्स कहीं ना कहीं उनकी पहुंच से छूटे हुए हैं. बहुत सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्यूबेटर्स हैं जो काम कर रहे हैं, बट जैसा अभी राहुल ने बताया वो उनके साथ काम करते हैं जो बहुत अच्छे से पिच करना जानते हैं, जो बहुत अच्छे से अपनी बात कह सकते हैं. हो सकता है फील्ड में प्रोडक्ट वाइज वो क्वालिटी ना हो, बट जो बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन करना जानते हैं. ज्यादातर इंक्यूबेटर्स आज की तारीख में उनके साथ काम कर रहे हैं. तो iSeed ने ये महसूस किया कि काफी बड़ा एक सेक्टर है, काफी ज्यादा मतलब पोटेंशियल है इसमें, कि उन लोगों के साथ भी काम करने की जरूरत है जो बहुत अच्छा अपना बिजनेस तो कर रहा है, आइडिया बहुत अच्छा है, पर कहीं ना कहीं उनको ये नहीं पता है कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग हम कैसे निकालें, हमें नहीं पता है मार्केटिंग हम कैसे करें. जब हम काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में गए, हम लोगों ने बात की एंटरप्रेन्योर्स के साथ, तो ये निकल के आया कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छे, मतलब जैसे आप ये देखेंगे अभी ग्रास से बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है, ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां बहुत अच्छा काम हो रहा है, बट जब उनसे बात की तो पता चला हमें पता नहीं है इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, हमें नहीं पता है कॉस्टिंग कैसे करेंगे. अच्छा, ब्रांडिंग करने की भी जरूरत होती है क्या? हाट बाजार में जो चीज बेचे यदि टूरिस्ट को बेचेंगे तो दाम अलग अलग रखना चाहिए क्या? या फिर कंप्लायंसेस हमको नहीं समझते, कितने सारे रजिस्ट्रेशन है, ये FSSAI क्या है. तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे और लगा कि इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए लोग नहीं है उन लोगों के पास कि जिनके पास जाके वो अपनी समस्या को पूछ सके या जिनका समस्या का समाधान हो सके. तो एक रीजन था कि iSeed ने इस बारे में सोचना शुरू किया. फिर लगा कि ये जो ग्रासरूट एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको बहुत ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट की जरूरत है. सिर्फ एक बार ट्रेनिंग कर देने से शायद वो सारी चीजें नहीं होंगी, उनके साथ और भी लंबे समय तक काम करने की जरूरत है. मेन स्ट्रीमिंग ऑफ ग्रासरूट एंटरप्रेन्योर्स रिक्वायर सस्टेन्ड सपोर्ट. ऐसा नहीं है कि आज आपने कर दी 4 दिन की ट्रेनिंग और बात हो गई, हो सकता है फिर से जाके भी उनसे मिलना पड़े, हो सकता है उनके बहुत सारे, कई बार हम लोगों को रात में 9 बजे भी दीदी ये समझ में नहीं आ रहा है हमें इतना दाम रखूं या इतना दाम रखूं. अभी भी हमारे कुछ एंटरप्रेन्योर्स हमको फोन करके ये पूछ रहे हैं. सोच रहे हैं, दैट इज आई थिंक बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर iSeed कि लोग अब हमको फोन करके पूछ रहे हैं कि हम क्या करें इसमें. absence of local ecosystem to support enterprise development. हम लोग इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव इसकी इकोसिस्टम की ही बात हम पूरा चर्चा आज दिन भर करेंगे, पर ग्रासरूट एंटरप्रेन्योर्स के लिए इकोसिस्टम कहाँ है? इकोसिस्टम है, बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
पर ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर जो किसी एनजीओ के साथ एसोसिएटेड नहीं है, जो किसी के साथ उसका आइडिया है, उसको आगे बढ़ना है, क्या उसके लिए इकोसिस्टम है? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन कि इस पर और काम करने की हम लोगों को लगा कि जरूरत है। एनजीओज आर ऑफन लोकल एंकर्स। एनजीओज के साथ आप सब लोग डेवलपमेंट, और मैं खुद भी डेवलपमेंट सेक्टर को ही बिलोंग करती हूँ, पर मुझे लगता है एनजीओज के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो एट ए टाइम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप या एक वर्टिकल ये भी है जिस पे वो काम कर रहे हैं, उनकी अपने लिमिटेशन है, शायद वो फुल टाइम बहुत ज्यादा इंटरप्राइज डेवलपमेंट पे काम नहीं भी कर पाएंगे। तो उसको लेकर भी एक चैलेंज था कि उनकी कैपेसिटीज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। 210 से ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्यूबेटर्स हैं, दोज हु आर वर्किंग विद all the persons who can speak English, who can present themselves very well manner. There again I say कि बहुत सारी स्कीम्स है, बट लेक ऑफ एक्सेसिबिलिटी है। स्कीम्स तो है, मतलब पात्रता है पर पहुंच नहीं है। बहुत सही हिंदी में यदि बात करेंगे तो कि एलिजिबल है बट हमें पता नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। कोई भी, मतलब बहुत कम इंक्यूबेटर्स हैं जो ग्रास रूट एंटरप्राइजेस के साथ काम कर रहे हैं। सोशल एंटरप्राइजेस के साथ काम हो रहा है, विल ग्रो जैसे इंक्यूबेटर्स है, अनलिमिटेड है, जो सोशल जो एंटरप्राइजेस हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। पर ग्रास रूट एंटरप्राइजेस के साथ, क्योंकि उनके साथ चैलेंजेस ज्यादा ये है कि आपको बहुत ज्यादा कस्टमाइज सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है। तो बहुत कम इंक्यूबेटर्स हैं जो अभी ग्रास रूट एंटरप्राइजेस के साथ काम कर रहे हैं। अगेन उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है। जितने भी एनजीओज में हमने विजिट किया, सब दूर से निकल के आया, हमें ट्रेनिंग की तो जरूरत है, आप आइए प्लीज ट्रेनिंग कीजिए, हमें जरूरत है इस तरीके की। तो डिमांड काफी ज्यादा है और कैपेसिटी बिल्डिंग का की भरपूर संभावनाएं हैं। हम लोगों ने कैसे शुरू किया? हम AKRSP, DSC, उर्मूल, उदयपुर ऊर्जा, पीपल साइंस इंस्टीट्यूट, काफी सारे एनजीओज में हम लोगों ने ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स के साथ इंटरेक्ट किया, उनसे मुलाकात की, उनसे चर्चा की। नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड 2018 से इरमा एंकर कर रहा है गुजरात राजस्थान के लिए। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए कि हम इंटीरियर में जाके जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनसे मिले, उनकी चुनौतियां, उनकी समस्याओं को समझ पाए। तो 2018 में भी यानी कि फील्ड विजिट हमने की। हमने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर रही हैं उनका एक वर्कशॉप यहाँ अक्टूबर 2018 में किया था, जिसका मकसद यही था कि उनको क्या चुनौतियां आ रही है एज ए एनजीओ, एज ए CSO, उनके क्या चैलेंजेस हैं एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड। हम लोगों ने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप किया था ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप पे AKRSP के साथ। स्टेट लेवल एक वर्कशॉप किया था हमने श्रॉफ फाउंडेशन के साथ छोटा उदयपुर में। वो सारा बेस था कहीं ना कहीं कि हम लोगों को इस डायरेक्शन में और आगे काम करना है। नेशनल कन्वेंशन जिसका वीडियो आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे, एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम, वो मार्च 2019 में हम लोगों ने किया था। ग्रोइंग एंटरप्रेन्योरियली बुक लॉन्च की थी हमने, जिसमें ऐसे केसेस थे जो ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स के केसेस थे, उनको हम लोगों ने लॉन्च किया था। फिर इसमें काफी बड़ा योगदान SC/ST हब ने हम लोगों को, इरमा को SC/ST एंटरप्रेन्योर्स की ट्रेनिंग का एक जवाबदारी दिया था। उस दौरान हमने महसूस किया कि वाकई इस पर ठोस रूप से काम करने की जरूरत है। और हम लोग का वो 6 दिनी जो ट्रेनिंग हुआ पिछले साल, इस साल, हम लोगों ने सोचा कि इसी को बेस रख के हमें और आगे काम करने की जरूरत है। फील्ड विजिट और इंटरेक्शन between all the like-minded people, they gave lot of input कि हाँ इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम करने की जरूरत है। और इसीलिए हम लोग ने यह तय किया कि ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग नीड्स उनकी तो है ही, हम उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमने उस पर काम करना शुरू किया। तो ये कुछ पिक्चर्स है, उर्मूल, बीकानेर हम लोगों ने विजिट किया था। ये सारी आर्टिजन्स महिलाएं जो बहुत अच्छा वेस्ट क्लॉथ से दरी और ये सब बनाने का काम करती हैं। बना बहुत अच्छा रही है, कहाँ बेचना है आप बता दो दीदी, हम आगे कैसे बढ़ें। ये काफी सारी अच्छी महिलाएं हैं, बिल्कुल इंटीरियर पाकिस्तान से लगे हिस्से की महिलाएं जो बहुत अच्छी कशीदाकारी करती हैं। उर्मूल उनको सपोर्ट कर रहा है, उर्मूल उनके काफी सारे प्रोडक्ट्स लेता भी है, पर वो एक लिमिटेशन है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। यदि वो खुद से कुछ करना चाहे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। उदयपुर ऊर्जा अनुभव है, अनुभव भी शेयर करेंगे बाद में। हम लोगों ने इनकी सारी महिलाएं जो सोलर बेस्ड मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ चर्चा की।
पर्यावरण मित्र का है ये, वीना बेन है, वीना बेन शेयर करेंगी। और भी हम लोग काफी बार पर्यावरण मित्र में तो वैसे हम लोग रूटीन में विजिट करते रहते हैं, इसलिए पता ही है कि वहाँ की क्या क्या चैलेंजेस है। वही एनईए ने हमको ये मौका दिया कि हम दमन और दीव में जाके भी एससीजी की महिलाएं और कलेक्टिव एंटरप्राइजेस के साथ बात कर सकें। AKRSPI के साथ जो चर्चा हुई, समझ में मोटा मोटा ये आया कि ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स लगभग 3 कैटेगरी के हैं। एक तो जो लोकल प्रोक्योर करते हैं, लोकल सेल करते हैं, बट ऐसे भी हैं जो आउटसाइड प्रोक्योरमेंट है और लोकल सेल है, और ऐसे भी हैं जो लोकल प्रोक्योर करते हैं और आउटसाइड सेल करते हैं। इनकी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग है। हम लोग अभी जब PSI गए थे, वहां बहुत सारी महिलाएं उत्तराखंड की है जो हाट बाजार में भी अपना सामान बेचती हैं और टूरिस्ट को भी बेचती हैं। Can you share something about that? मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं राजस्थान के गांव में काम करता हूँ और ख़ास तौर से अभी हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। तो जो प्रोफेसर शंभू प्रसाद ने कहा कि हम अक्सर जब स्किलिंग की बात करते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि हम शायद शहर में से किसी को गांव में जाके स्किलिंग का काम करना चाहिए। जो मेरा अनुभव रहा है, वहाँ के लोग इतने स्किल्ड हैं, वो अपना ट्रैक्टर ठीक कर लेते हैं, अपना हैंडपम्प ठीक कर लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं, उन्होंने बांध बनाए हुए हैं। वहाँ के लोग बहुत स्किल्ड हैं। जैसा नवीन बोल रहे थे, एक थोड़ी सी इतनी सी ज़रूरत है कि हम उस प्रकार के डिज़ाइन बनाएं जिस प्रकार के डिज़ाइन अभी मार्केट में जिनकी डिमांड है। तो थोड़ी सी हमको डिज़ाइनिंग पे काम करना पड़ेगा। मैंने अभी तक हम 2-3 जो ट्रेनिंग्स की हैं आईसीड के साथ, उसमें काफ़ी कुछ सीखा भी है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स तो बहुत हैं और काफ़ी क्षमता भी है उनकी, लेकिन शायद एक प्रकार की मानसिकता चाहिए व्यवसाय करने के लिए, जिसमें मुझे लगता है थोड़ा सा बदलाव चाहिए। दूसरा, चलिए शुभाष बैक। बेचने में भी कर सकती है, ये अभी तक उसने नहीं सोचा है। अपने बिजनेस को एक साथ एक बार में कैसे बताया जा सकता है, वो एक कर बहुत अच्छे से रहे, पर वही है ना कि आप 90 सेकंड में अपना पिच कैसे कर सकते हैं, वही बात आप 2 घंटे में भी करने के बावजूद वो चीज नहीं बता पाए जो जरूरत है। तो वो एक थी। और सबसे बड़ी जो दिक्कत थी कि लीगल एनवायरनमेंट, वो एक समझ होना कि क्या मेरे बिजनेस को ये सारे रजिस्ट्रेशंस की जरूरत है, यदि मुझे बाहर जाना है तो मुझे क्या करना है, यदि मुझे बाहर माल बेचना है तो कैसे बेचना है, ये सारी जरूरत थी। ट्रेनिंग नीड जो हमने आइडेंटिफाई की कि बिजनेस ही एंटरप्रेन्योरशिप भी है, इंटरप्राइज जो है वो बिजनेस है, ये एक समझ। गांव में अपना काम तो है, वो गले में वही पैसा घर खर्च के लिए भी जा रहा है, वही पैसा बिजनेस में भी लग रहा है, और फिर कहीं ना कहीं ये गैप है कि हमें समझ में नहीं आ रहा हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या नहीं है। तो वो एक था। दूसरा, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे हो, मार्केटिंग। मेरी टीम तो है, मेरे साथ 4 लोग काम कर रहे हैं, पर मुझे उनको जवाबदारियां देना नहीं आ रहा है, या फिर मुझे और किन लोगों से सहयोग मिल सकता है, मेरे और कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, उस बारे में और समझ की जरूरत है। मैं कहां पे और स्कीम्स में अप्लाई कर सकती हूं, या मेरी कार्य योजना, व्यवसाय की बिजनेस प्लानिंग कैसे हो, वो भी एक ये सारी पायलट ट्रेनिंग्स के पिक्चर्स हैं हमारे। हमने उदयपुर ऊर्जा में किया है ट्रेनिंग, काफी सारा फैसिलिटेशन स्किल्स को यूज करके। PSI देहरादून में राहुल के साथ किया, उर्मूल बज्जू में मैंने और गौतम ने किया था ट्रेनिंग। पर्यावरण मित्र में किया है, NDDB में कुछ सेशंस किए हैं स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट और बिजनेस मॉडल कैनवास पर।
आईसीड की जो ऑफरिंग्स है, या तो ऐसी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सीएसओ की टीम को जो एंकर कर रहे हैं उनको कर सकते हैं, या लीड एंटरप्रेन्योर्स को कर सकते हैं। आईसीड कैन सपोर्टिंग इनोवेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टू। आपके एरिया में जो एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि हाँ उनको और आगे सहयोग की जरूरत है, आईसीड would really interested to do all this work। नेटवर्किंग कनेक्ट कैसे कर सकते हैं हम उनको लोकल एंटरप्रेन्योर्स इकोसिस्टम से। मेंटरिंग सीएसओ टीम को या लीड एंटरप्रेन्योर्स को कैसे कर सकते हैं। एडवाइजरी कंसल्टिंग का जो अभी नवीन भाई ने भी बात कही कि हम लोग जरूर से आईसीड एज ए इंक्यूबेटर ये चाहेंगे कि सीएसओ जो भी एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर रहे हैं उनके रीजन में, यदि उन्हें एडवाइजरी कंसल्टिंग की कोई जरूरत है तो आईसीड कैन सपोर्ट इन दैट वे टू। हम लोगों को लगता है ग्रास रूट एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर्स ट्रेनिंग में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सीएसओस हैं जो प्रमोट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट एजेंसीज जो एनआरएलएम जैसी एजेंसीज हैं, क्योंकि एनआरएलएम के बहुत सारे कलेक्टिव एंटरप्राइजेस हैं। बट थोड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैंने जितने भी डिस्ट्रिक्ट में काम किया है या अभी जहां जहां विजिट किया है, नंबर बहुत अच्छे हैं, बट फील्ड में वो कलेक्टिव एंटरप्राइजेस में वो बिजनेस की पकड़ की वाकई कमी है। ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके साथ काम किया जा सकता है, और डोनर एजेंसीज भी हैं जिनके टीम को शायद इस बारे में थोड़ा और अवगत कराने की जरूरत है कि एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा नहीं है कि आज हो गया और कल उसके रिजल्ट आने लगेंगे, उसमें भी कुछ वक्त लगता है। हमने नॉलेज क्रिएशन इन वर्नाक्युलर में कोशिश की, हिंदी में हम लोग ब्लॉग्स लिखे हैं, हमने ग्रोइंग एंटरप्रेन्योरली एक जो बुक भी लॉन्च की है जिसमें 18 केस स्टडीज है एंटरप्रेन्योर्स की। हमारा एक्सपेक्टेशन सीएसओ से ये है कि उनको अपना सस्टेनेबिलिटी यदि आप इंश्योर करना चाहते हैं तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप पे जाना ही होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड चीज नहीं है कि आज प्रोजेक्ट हुआ और कल खत्म हो गया तो बात खत्म हो गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल they should acknowledge that they need to develop their capacities on enterprises development for ensuring sustainability। सेकेंड, ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सारे हैंड होल्डिंग सपोर्ट की जरूरत है। हम लोग ट्रेनिंग कराएंगे बट उसका फॉलो अप शायद आपकी टीम में जो एंकर रोल कर रहे हैं उनको करना होगा। हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं जो एंकर हैं एनजीओ के, बट शायद हम बहुत हद तक नहीं पहुंच पाएंगे हर एंटरप्रेन्योर तक। या फिर आप कम्युनिटी से किसी एक बंदे को नॉमिनेट कर सकते हैं। यदि आपकी टीम में के पास कुछ और जवाबदारियां हैं तो आप कम्युनिटी में जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट ले रहा है, आप उसको नॉमिनेट कर सकते हैं जो हमारे कंटिन्यूस टच में रहे और हम उसको मेंटरिंग सपोर्ट दे सकें। एंटरप्रेन्योर्स के साथ एक फॉलोअप की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ग्रास रूट आप सब लोग डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप जरूर से देखेंगे वो 3 दिन आएंगे, बहुत अच्छी ट्रेनिंग होगी, बहुत अच्छा हुआ दीदी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई, जाने के बाद हाँ भैया ये करके आप भेजिएगा, हाँ हाँ दीदी 2 दिन बाद भेज देंगे, और फिर महीना हो जाता है, फोन करो तो पता चलता है अरे वो तो नया ऑर्डर आया था दीदी अब उसमें लग गए हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि वाकई हमारे ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स का क्षमतावर्धन हो तो हमें उनके साथ एक फॉलोअप भी करना पड़ेगा। और एक जेन्युइन सा रिक्वेस्ट है सीएसओस के साथ, कई बार एंटरप्रेन्योरशिप डोनर ड्रिवन हो जाता है। हमारे डोनर ने कहा है कि इतने एंटरप्राइज, कलेक्टिव एंटरप्राइज प्रमोट करना है, इतने इंडिविजुअल एंटरप्राइज प्रमोट करना है, तो हम उस डायरेक्शन में काम करते हैं। बट मुझे लगता है कि ये सही टाइम है सीएसओस को भी सोचने का कि एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू वो लॉन्ग टर्म में सोशल इम्पैक्ट, सिर्फ इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं, सोशल इम्पैक्ट को भी इंश्योर कर सकते हैं। हम लोगों को जो चैलेंजेस आए, पहली जब हम लोगों ने ट्रेनिंग की तो हमारे एग्जाम्पल्स बहुत ही अलग थे। मतलब हम लोगों ने कोशिश की कि हमने अंबानी का एग्जाम्पल कुछ काम नहीं आया, एंड देन फाइनली हम लोगों को एग्जाम्पल्स लेने पड़े। गांव का बनिया जानते हो ना, क्यों उसके यहाँ सामान खरीदने जाते हो, लाइक दैट। सो ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप थ्योरेटिकल सेशन नहीं कर सकते उनके साथ।
2 घंटे बिठा भी नहीं सकते। उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो ये सोचेगा अरे ये आई है इतनी दूर से पढ़ा रही है तो मैं रुकूं, उनका मन होगा वो उठ के चले जाएंगे। तो आपको यदि उनका इन्वॉल्वमेंट इंश्योर करना है तो उनके साथ बहुत हद तक इन्वॉल्व होना पड़ता है, और उसके लिए फैसिलिटेशन हम लोगों ने हमारी किसी भी ट्रेनिंग में कोई पीपीटी यूज नहीं किया, कुछ नहीं किया, हम लोगों ने सारे फैसिलिटेशन टूल्स यूज किए हैं और 100% इंश्योर किया है कि उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ बना रहे। एग्जाम्पल्स उनके कॉन्टेक्स्ट के होते हैं तो वो बहुत जल्दी रिलेट कर पाते हैं, बहुत अच्छे से उसका आंसर दे पाते हैं, तो वो एक चैलेंज था। और सो थैंक्स, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग।